I am Anu Kumari. I am an IAS officer of batch 2018. I am basically from Haryana, Sonipat district, and I am at present posted in Kannur district of Kerala Kadar. So that is a brief description about me. Now I will straight away start with the FAQs. So even before going to how to start preparation, first I would want to talk about. I get a lot of questions. बहुत लोग पूछते हैं जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं, 12th में हैं, या मे बी फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में हैं. दे कीप ऑन आस्किंग कि what should we do at this stage for our UPSC preparation. So first of all, to these children, I want to tell, life is much more than just UPSC. So at these stages of your life, when you are pursuing your 10th standard, 12th standard, or just the initial years of college, you should, instead of right away going into the rigor of UPSC preparation and starting reading those books which are relevant for UPSC, but please focus on developing a wholesome personality. That is going to help you more to crack UPSC when the time comes, rather than immersing yourself in UPSC oriented books at this stage. What do I mean by a wholesome personality? So, what I would want to say is, at this stage, you should focus on um, owning your skills, owning your hobbies, developing a genuine interest in anything. It can be cricket, music, dancing, painting, some games, some sport, watching movies, or anything that you genuinely like. Develop a passion for that and study that thoroughly. Okay, try to gain genuine knowledge about that. Be alert about what is happening in that particular field around you. When it comes to academics, instead of reading or studying maybe UPSC oriented books, focus on what is your curriculum. Because what happens is, when you will actually prepare for UPSC and you will sit for the personality test or the so called interview, then you, most probably being a fresher, most of the questions could be emerging from your academic background. So at that point of time, if you have a thorough and genuine knowledge, your fundamentals are clear, that is going to aid you more as compared to you immersing yourself in UPSC oriented books at this young age. Okay, moving forward, the second question which I get often is how to start preparation. Okay, how to start preparation from zero. सो बच्चे उसके लिए आसान सी चीज़ है. सबसे पहले आप अपनी बुक लिस्ट कंपाइल करिए. और बुक लिस्ट कंपाइल करने का क्या तरीका है? यू कैन गो एंड सर्फ थ्रू द बुक लिस्ट ऑफ previous toppers, whoever you like, or the latest toppers, whatever you feel like. Do a research on that. Then you compile a book list, going by your research on the book list of multiple toppers. इसमें मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगी. ट्राई टू कीप योर सोर्सेज लिस्ट शॉर्ट. अगर आप इसे ज़्यादा लंबा करते जाते हैं ना, क्वाइट ऑफन इन मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, वो लोग हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई किताब बता देते हैं. बट ट्रस्ट मी, वी all study, when we study for UPSC, we study in a time bound manner. We really have shortage of time. हर एक नए टॉपिक के लिए एक नई बुक कवर करना is next to impossible. So be practical, keep your book list short, and try to take multiple revisions of that instead of going for a large number of books to begin with. तो सबसे पहले आप अपनी एक बुक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है? टू बिगिन विद यू कैन स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स. अब एनसीईआरटी बुक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, नई वाली पढ़े या पुरानी वाली, वेदर टू स्टडी द ओल्ड वन और द न्यू वन. तो मैंने ओल्ड वाली पर्टिकुलरली नहीं ली थी. आई हैड जस्ट गॉन टू अ बुक शॉप और जो मुझे मिली मैं लेके आ गई थी. टर्न्स आउट दैट दे वर द न्यू एनसीईआरटी. तो वो करके मैंने किया था एंड इट टर्न्ड आउट वेल. उसमें भी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज इन एवरीथिंग. सो बुक लिस्ट बनाइए, start preparing, preferably starting with NCERTs. Again, 6 to 12 सारी NCERTs नहीं करनी है. You're not supposed to go through each and every NCERT. The
पैटर्न ऑफ द पेपर इज चेंजिंग। बहुत पुराने टाइम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिन्हें हम जनरली ये बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से, मे बी बहुत टाइम पहले। नाउ डेज द क्वेश्चंस आर नॉट too much FAQ oriented, that too related to NCERT books. So flip through the NCERT books. You can cover only the relevant ones. For that you can refer my book list or the book list of any other topper. But 6 to 12 सारी NCERTs करने की जरूरत नहीं है. Once you start, NCERT book आपने cover की. Again, one question that is often asked is, एक बुक को पहले एक बार खत्म करके देन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की बुक्स यू कैन कवर पैरेलली और साइमल्टेनियसली. सो अगेन कंप्लीटली योर चॉइस, व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, आपको क्या ठीक लगता है. अगर मैं अपनी बात करूं तो फॉर मी इट वाज दैट आई वुड टेक अप वन बुक, उसको खत्म करके ओनली आफ्टर दैट आई वुड मूव ऑन टू द न्यू बुक. ऐसा करने से मुझे जो फायदा होता था वो ये था कि आई वुड बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि मैं एक बुक की एक रीडिंग या एक प्रॉपर वाली लर्निंग कितने टाइम में कर पा रही हूँ. सो सूट योर सेल्फ, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप वो अपनाइए. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, be it preliminary exam or means or the personality test, do keep it in your mind कि सारे कंटेंट को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है. तभी जाके हमारी रिटेंशन अच्छी होती है, तभी जाके वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इन दी एक्चुअल सेटिंग्स. मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम में या पर्सनालिटी टेस्ट में हम उसे बता तभी पाते हैं. तो क्वाइट ऑफन स्टूडेंट्स आस्क मुझे याद नहीं रहता है. So trust me बच्चे, it is very natural, it is a normal thing, happens to everybody. मैं अगर अपना आज की if I tell you about myself today, लक्ष्मीकांत मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, लगभग 4 साल पहले. So अगर आज कोई मुझसे आके somebody ask me about the articles etc of लक्ष्मीकांत या पॉलिटी, तो मुझे बहुत कम याद होगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है, मैंने ऑब्वियसली उस बुक को रिवाइज नहीं किया है. सो रिविजन इज व्हाट मैटर्स. कोई भी आइंस्टाइन पैदा नहीं होता है माँ के पेट से कि एक बार पढ़ दिया सारा याद हो जाएगा. यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग. एंड व्हेन वी से दैट यू रीड अ बुक, सो इट्स नॉट जस्ट mere रीडिंग. इफ यू जस्ट रीड इट, ट्रस्ट मी, रिटेंशन नहीं होगा. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट. तो आपको सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको उसे लर्न करना है, मेमोराइज करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली समझना है. अगर हम मगिंग या क्रैमिंग करते हैं ना, तो द टेंडेंसी टू फॉरगेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर. तो यू हैव टू फोकस ऑन मेमोराइजिंग द थिंग्स. देन हर एक स्टेज से पहले, जैसा मैं बोल रही थी, प्री हो, मेंस हो या इवन पर्सनालिटी टेस्ट, आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को कई कई बार रिवाइज करना है. फॉर मी दैट फिगर वाज समवेयर अराउंड 5-6 टाइम्स. एंड व्हेन आई से 5-6 टाइम्स यू हैव टू स्टडी अ बुक, दैट मीन्स सबसे पहले आपकी जो रीडिंग होगी दैट कैन बी अ कर्सरी रीडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक. आपको समझ आ रहा है या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हेन यू टेक द सेकेंड रीडिंग, that has to be actual memorization and actual learning. When you take the third reading, then try to see कि how much of it you are able to retain और कितना आप भूल गए हैं, and then again memorize and learn those things which you are forgetting. ऐसा ही करके आपको अपनी चौथी रीडिंग लेनी है, पांचवी लेनी है. What begins to happen is when you reach maybe a fourth या fifth reading of that book, तो आपका retention part increase होता चला जाता है. And what I found was कि when the exam was approaching, for example अगर प्री हमारा 1 हफ्ता दूर है और मुझे अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की रिविजन करनी थी, तो आई वुड फ्लिप थ्रू दोज बुक्स. उस टाइम मैं एक एक वर्ड पढ़ के उस पूरी बुक की रिविजन नहीं लूंगी, रादर मैंने उसमें अपने सेक्शंस हाईलाइट कर रखे थे, पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे थे, विच आई यूज टू फाइंड डिफिकल्ट टू मेमोराइज एंड विच आई हैड अ टेंडेंसी टू फॉरगेट. तो मे बी मेरी जो लास्ट रीडिंग थी दैट वाज मोर फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स रिवाइजिंग दोज पॉइंट्स विच आई फाउंड डिफिकल्ट. सो व्हेन आई से मल्टीपल रिविजन्स, दैट यू हैव टू अट्यून टू योरसेल्फ कि आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हर एक रीडिंग में रिवाइज करना है, या फिर व्हेन यू गो टुवर्ड्स व्हेन यू रीच द एग्जाम, तो आप सिर्फ उन पार्ट्स पर फोकस कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, और बाकी पार्ट्स यू आर श्योर, यू हैव टू एंश्योर कि वो ऑलरेडी मेमोराइज हो चुके हैं, यू डोंट हैव अ डिफिकल्टी इन रिटेनिंग दैट. तो बच्चे, प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी है. जस्ट टू समराइज अगेन, बुक लिस्ट बनाइए, बुक्स रीड करना शुरू कर दीजिए, प्रेफरेबली एनसीईआरटीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली ईजियर. देन मूव ऑन टू अदर स्टैंडर्ड बुक्स. अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए. एक मोटी मोटी अगर मैं टाइमलाइन बताऊं जो मैंने अपनाई थी, विच आई फॉलोड.
मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए लगभग 4 महीने रख लो कि 4 महीने में अपना जनरल स्टडीज़ का सारा कोर्स हमें कंप्लीट करना है। Once you have finished your general studies, after that you can kind of devote around 4 months to your optional. Okay, and after that, if we say, and this I am telling you this broad timeline, keeping in mind that you are starting your preparation at least 1 year in advance to the preliminary exam that you are targeting. शुरुआत के 4 महीने आप जनरल स्टडीज़ कंप्लीट करने में लगा सकते हैं, एंड व्हेन आई से कंप्लीट, दैट मीन्स कि मल्टीपल रिविजन्स, ओके, एंड रिटेंशन शुड स्टार्ट हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगले 4 महीने यू कैन डेडिकेट, नेक्स्ट 4 मंथ्स यू कैन डेडिकेट टू योर ऑप्शनल। अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, एंड in these months I'm not talking about answer writing practice, I'm coming to that next. So once in the initial 4 months when you have done your GS, then in the next 4 months when you are not going to touch your standard GS wala books again, rather you are going to focus only on your optional, that is a good time to start answer writing practice for the mains. Okay, because आपने सारा GS का स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया है, करंट अफेयर्स यू वुड हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम डे 1, तो आपका एक बेस बन चुका है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग।